السلام علیکم. PBN چینل کے خبرناموں میں آپ کا استقبال ہے. خبرنامہ کی شروعات میں دیکھتے ہیں ہیڈ لائنز. قائد اپوزیشن راہل گاندھی کی بڑی پریس کانفرنس. بی جے پی پر لگایا ووٹ چوری کا الزام. کہا الگ الگ دن کیوں ہوتے ہیں الیکشن. پرگی میں کانگریس کو بڑا جھٹکا. BRS میں اہم شمولیتیں. پارٹی چھوڑنے والوں پر KTR کا طنز. کہا اپنا سیاسی چہرہ تک دکھانے کے قابل نہیں رہے. پوپولا گڑا گنڈی پیٹ منڈل میں 200 ایکڑ سرکاری اراضی کی حد بندی کی جائے گی. ہائیڈرا کا فیصلہ. کمشنر نے کیا دورہ. تلنگانہ میں آئندہ 2 دن تک بارش کی پیش قیاسی. ہمایت ساگر میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ. دروازے کھول کر پانی چھوڑے جانے کا امکان. عوام کو چوکسی کا مشورہ. حیدرآباد میں غیر قانونی سروگیسی ریکٹ. مزید 8 افراد گرفتار. کل تعداد ہوئی 25. IVF اور سروگیسی کے نام پر لاکھوں روپیوں کا فراڈ. اب خبریں تفصیل سے. قومی کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے آج پریس کانفرنس میں انتخابی نظام پر سنگین سوالات اٹھائے اور BJP اور الیکشن کمیشن پر جانبداری کے الزامات عائد کیے. انہوں نے ووٹر لسٹ میں دھاندلی اور EVM پر شکوک ظاہر کیے. آئیے دیکھتے ہیں تفصیل. کانگریس قائد اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے آج ایک اہم پریس کانفرنس کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی اور الیکشن کمیشن پر سخت الزامات عائد کیے. ان کا کہنا تھا کہ ملک میں ووٹنگ کے نظام پر سنگین سوالات اٹھ چکے ہیں اور جمہوریت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. راہل گاندھی نے کہا کہ پہلے جب الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں نہیں تھی تب بھی پورے ملک میں ایک ہی دن میں الیکشن ہو جاتا تھا. آج جب ٹیکنالوجی ہے تو الیکشن مہینوں تک کیوں چلتے ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا کہ مختلف ریاستوں میں EVM، ووٹر لسٹ اور ووٹنگ کے عمل میں سنگین بے ضابطگیاں پائی گئی ہے جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. راہل گاندھی نے کہا کہ مہاراشٹر میں 40 لاکھ سے زائد پراسرار ووٹرز رجسٹرڈ ہیں جن کی جانچ کی جانی چاہیے. کرناٹک میں بھی کانگریس کو اندرونی سروے میں 16 سیٹوں پر جیت کا اشارہ ملا تھا لیکن نتیجہ صرف 9 سیٹوں پر کامیابی کی شکل میں نکلا. انہوں نے الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہریانہ اور مدھیہ پردیش جیسے انتخابات میں ایگزٹ پول کچھ اور دکھاتے ہیں اور نتائج بالکل مختلف نکلتے ہیں. کیا یہ محض اتفاق ہے؟ راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ سروے رپورٹس کو نظر انداز کر کے دانستہ طور پر عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے تاکہ BJP کو فائدہ پہنچایا جا سکے. راہل گاندھی نے ایک مبینہ ووٹر لسٹ بھی دکھائی جس میں ایک ہی فرد کے نام بار بار شامل ہونے کے شواہد موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ یہ ایک نہایت محنت طالب علم تھا. ہماری ٹیم نے 6 مہینے تک مسلسل کام کر کے ہزاروں صفحات کی جانچ کی تب جا کر ہمیں اس دھاندلی کے ثبوت ملے. انہوں نے شکوہ کیا کہ الیکشن کمیشن الیکٹرانک ڈیٹا دینے سے گریز کرتا ہے تاکہ اس قسم کی جانچ ممکن نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ راہل گاندھی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت میں ہر پارٹی کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن BJP واحد ایسی پارٹی ہے جس پر عوامی ناراضگی کا کوئی اثر نہیں پڑتا. کیوں؟ راہل گاندھی کے ان بیانات نے نہ صرف BJP پر براہ راست الزامات عائد کیے بلکہ انتخابی نظام اور الیکشن کمیشن کی ساکھ پر بھی سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان الزامات پر حکومت یا کمیشن کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آتا ہے. Total votes in the assembly of Madhapapura, 1,250,000 votes were stolen. They were stolen in 5 different ways. The first way, duplicate voters. One voter appearing multiple times on the voter list. Fake and invalid addresses.
voters who didn't have addresses or were just fake addresses. Bulk voters in single address, one building, 50 people, 60 people, one bedroom house, but we go there, no 50 people living there. No record of those people ever having living there, one family living in that house. Invalid photos, photos which you simply cannot see or no photos existing of theirs on the polling list. And then the most interesting, misuse of Form 6. Form 6 is the form that allows new voters to become voters. So generally Form 6 is anyone who's 18 and above but hasn't voted in the last election, so they should be between 18 and 22, 23 years old. इनकी ये स्केल समझिए, एक असेंबली में तकरीबन 12 से 15% वोट इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया. तो अगर चुनाव में 2-3%, 4% की मार्जिन चल रही है तो वो तो गया, राइट. और हमने ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई किया है देश में, जहां पे एक सीट पे धड़ाके से बीजेपी स्वीप करती है या 2 सीटों पे धड़ाके से स्वीप करती है. बाकी सीट्स में नेचुरल कंपटीशन चल रहा है और फिर सडनली एक सीट में जैसे यहां हुआ स्वीप हो जाती है और पूरा चुनाव चला जाता है. आखिरी बात, नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं. मैंने जैसे कहा 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो, 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो. मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है. तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया. चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी, रियासती उजरा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और कौंसिल ने आज दिल्ली में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और इन्हें तेलंगाना में 42% बीसी तहफुजात की तफसीलात से वाकिफ करवाया. चीफ मिनिस्टर उजरा और दीगर कायदीन ने वाज़ेह किया कि हुकूमत तेलंगाना जिन तहफुजात की फराहमी की तजवीज़ रखती है, इनमें किस तरह के ABCD या E ग्रुप्स शामिल नहीं हैं. ये सिर्फ BC तहफुजात हैं. मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया गया कि जुमरा बंदी सिर्फ तालीम के शोबे में है. BCE ग्रुप को 4% तहफुजात दिए जाते हैं जो 10% हिस्से से आते हैं. चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि इसमें मुसलमानों के लिए कोई तहफुजात नहीं है. मरकजी वजीर किशन रेड्डी को इस कानून को तफसीली तौर पर पढ़ने की जरूरत है. मुसलमानों को तहफुजात का अजर पेश करते हुए बीजेपी इन तहफुजात की सिरे से मुखालिफत करती आ रही है, जिससे BC तबकात को नुकसान हो रहा है. చట్టం చదవమని ఒకసారి చట్టం మొత్తం చదవమని దాంట్లో ఎవరికి లేదు. బ్లాంకెట్గా మొత్తం ఎన్బ్లాక్ 42% రిజర్వేషన్, సబ్ కేటగరైజేషన్ లేదు. ABCD గ్రూప్ అది ఎడ్యుకేషన్లోనే వస్తుంది. పొలిటికల్ రిజర్వేషన్ ABCD గ్రూప్ లేదు. ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నా ఆయన అర్థం లేకుండా మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నది ఈ గ్రూప్కి 4% ఉంది రిజర్వేషన్, 10-8 వచ్చింది ఆల్రెడీ ఉంది. ఈపీ పొలిటికల్ రిజర్వేషన్ కేటగిరీ ఉందా? BC అంటే BC ఉంది. ఆయనకు ఆ మాత్రం కూడా అర్థం కాకుండా కేంద్ర మంత్రి అయితే నేను ఏం చేస్తాను? ముస్లింకి లేనే లేదు బాస్, ముస్లిమ్స్ అనే రిజర్వేషనే లేదు. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए एक संजीदा और मायूस लहजे में कहा कि रियासत की अहम अवामी दरख्वास्तों के लिए वो पिछले 3 दिनों से दिल्ली में मौजूद हैं, मगर अब तक इन्हें सदर जमहूरिया से मुलाकात का मौका नहीं मिला. मीडिया से बात करते हुए CM ने कहा कि पूरी रियासत तेलंगाना की नुमाइंदगी के लिए हम दिल्ली में हैं, मगर बदकिस्मती से हमें सदर जमहूरिया से अपॉइंटमेंट तक नहीं दिया गया. मीडिया के खिताब के दौरान रेवंत रेड्डी ने एक अहम मसले पर बड़ा इंकशाफ किया है. అందుకే ఈరోజు 6-7 తారీఖుల్లో ఎప్పుడిచ్చినా మేము మిమ్మల్ని కలుస్తాము, ఢిల్లీలో మీకు అందుబాటులో ఉంటాము అని చెప్పి రాష్ట్రపతి గారికి మేము తెలియజేయడం జరిగింది. అందుకే ఇప్పటి వరకు నిన్న నిరసన కానీ దాదాపుగా 5, 6, 7 తారీఖుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం కదిలి ఇక్కడికి వచ్చింది. ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రభుత్వం మొత్తం ఢిల్లీకే వచ్చింది. మంత్రివర్గం మొత్తం ఢిల్లీలోనే రాష్ట్రపతి గారి అపాయింట్మెంట్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాము.
దురదృష్టవశాత్తు రాష్ట్రపతి గారి అపాయింట్మెంట్ మాకు దొరకలేదు. ఇది శోచనీయము, ఇది బాధాకరము, ఇది తెలంగాణ ప్రజలకు అవమానకరము. బలహీన వర్గాల హక్కులను కాలరాయడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ మొదటి నుంచి ఎన్నికలు రిజర్వేషన్లు అనేదానికి ఇప్పుడు రాష్ట్రపతి దగ్గర పెండింగ్ ఉన్నది కాబట్టి ఇవన్నీ చర్చలు. ఎన్నికలు ఎవరు నిర్వహించాలనో, ఎన్నికల అధికారులు ఎవరు నిర్వహించాలనో అది తెలుసు. రిజర్వేషన్లు రావు, వస్తే గవర్నర్ గారు ఆమోదిస్తాం. మా పరిధిలో ఉన్న బిల్లులు, శాసనసభ ఆమోదించిన బిల్లులను గవర్నర్ గారు ఆమోదిస్తే పంచాయతీ లేదు. ఆ బిల్లులను ఆమోదించకుండా రాష్ట్రపతి గారికి గవర్నర్ గారు రాష్ట్రపతికి పంపించింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది చర్చ జరుగుతున్నది. तेलंगाना की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। परगी हल्के असेंबली से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के अहम रहनुमा और सैकड़ों कारकुनान ने आज बीआरएस पार्टी का दामन थाम लिया। ये शमूलियतें बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव की मौजूदगी में हुई। कांग्रेस की इंचार्ज मीनाक्षी नटराज ने परगी में पदयात्रा शुरू की थी कि पूरा हलका कांग्रेस से खाली होकर बीआरएस में शामिल हो गया। केटीआर ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बीआरएस खत्म हो जाएगी, लेकिन जब तक तेलंगाना है तब तक गुलाबी झंडा बीआरएस का निशान लहराएगा। उन्होंने वाज़ेह लफ्ज में कहा कि कांग्रेस और बीजेपी को 3-3 घूंट पानी पीकर एक बार फिर से केसीआर को वज़ीर आला बनाना है। यही वक्त है कि अपने तेलंगाना को बचाने का। केटीआर ने पार्टी छोड़ने वाले कुछ साबिक एमएलएस पर भी शदीद तनकीद की और कहा कि जो लोग पार्टी बदल रहे हैं वो खुद भी नहीं जानते कि किस पार्टी में हैं। इनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वो अपना सियासी चेहरा तक नहीं दिखा सकते। ये बयान पार्टी बदलने वालों के लिए खुला चैलेंज भी था। केटीआर ने कहा कि वो लीडर जो बीआरएस से निकले अब ना बीजेपी में रहे हैं और ना कांग्रेस में। अपने खिताब में केटीआर ने किसानों को भी खबरदार किया कि अगर कांग्रेस जीत गई तो रैतू बंधु को खत्म कर देगी। केसीआर साहब ने पहले ही कह दिया था कि कांग्रेस को मौका दिया तो किसानों की इमदाद स्कीम रुखसत हो जाएगी। ఇవాళ చెప్తున్నా, రాసి పెట్టుకోండి, యాది పెట్టుకోండి. నేను చెప్తున్నా, కేసీఆర్ గారు ఆనాడు చెప్పిండి, నేను మళ్ళీ ఇవాళ చెప్తున్నా. కేసీఆర్ ఎలక్షన్లో అప్పుడు చెప్పిండు కాంగ్రెస్ గెలిస్తే రైతు బంధుకు రామ్ రామ్ అవుతుంది అని చెప్పిండు. నేను ఇవాళ చెప్తున్నా, ఈ ఒక్క ఎలక్షన్ల గండం దాటిందంటే రైతు బంధు ఖచ్చితంగా ఎత్తేస్తాడు, ఖచ్చితంగా మనకి ఇయ్యడు, యాది పెట్టుకోండి. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయ్యిండ్రు, క్యాబినెట్లో చర్చ అయ్యింది, మనం ఎట్లన్నా చెప్పి దీన్ని ఎత్తేయాలి, ఇది ఉంచితే మనం ఉండము. ఎందుకంటే ఎన్నిసార్లు పైసలు ఇచ్చినా కేసీఆర్కే పేరెత్తాంది, మనకు పేరు వస్తలేదు. రైతు బంధు అనగానే కేసీఆర్ యాదికి వస్తుండు, మనం యాదికి వస్తలేము, కాబట్టి ఇది పెట్టి లాభం లేదు. ఇలా ఎట్లున్నదంటే పొద్దున ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఒక వీడియో చూసిన నేను. పార్టీ మారిండ్రు, కొంతమంది మన ఎమ్మెల్యేలు మన పార్టీలో గెలిచిన కొంతమంది పోయినరు. పోయినాక సరే పోయిన వాళ్ళు పోయినామని చెప్పుకోవాలి కదా, ఏ పార్టీలు ఉన్నావా అంటే ఈ పార్టీలు ఉన్నాయని చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడికి వస్తుంటే ఆ వీడియో చూసిన, విలేకరు అడుగుతాడు, ఏ పార్టీలు ఉన్నావు సార్ నువ్వు అంటే, ఏ పార్టీలు ఉండాలో గా పార్టీలనే ఉన్నా. ఇప్పుడు మీకు పిల్లలు ఉంటారు అందరు ఇళ్ళలో, పిల్లగాడు బయటికి పోయింది అనుకో, బయటికి పోయినాక కొద్దిగా ఆలస్యమైంది అనుకో, 9:30 10 అవుతుంది, పిల్లగాడు ఇంటికి వస్తలేడు, ఫోన్ చేసినావు, యాడున్నవరా అంటే నేను యాడు ఉండాలనో గాడినే ఉన్నాను అనుకో. వాడు ఏమంటావు, నువ్వు దవడమికెళ్ళడు దంపో, ఇంటికి రాగానే నువ్వు వేస్తావా లేదా, ఏమరా బాగా మాట్లాడుతున్నావు అని. ఈ అతి తెలివితేటలు ఇలా చూస్తున్నాం, కొత్త కొత్త విచిత్రం. ఎవడెవడో మాట్లాడతాడు తలమాసినోడు, ఒకడు అంటాడు బీఆర్ఎస్ ఉండనే ఉండదు బీజేపీలో పోతుంది అంటాడు. మనకేం కర్మ, నాకు అర్థం కాదు. తెలంగాణ ఉన్నంత కాలం ఈ గులాబీ కండువా ఉంటుంది, బరాబర్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. ఈ రెండు పార్టీలకు 3 చెర్ల నీళ్ళు తాగిచ్చి మళ్ళొకసారి డంకా బజాయించి కేసీఆర్ గారిని ముఖ్యమంత్రి చేసుకుందాం మన రాష్ట్రానికి. बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने एक बार फिर तेलंगाना की सियासी फिजा को गर्म कर दिया है। उन्होंने आईएएस और आईपीएस जैसे आला ओहदों पर फाइज बाज अफसरान को खबरदार करते हुए कहा कि वो कांग्रेस की खुशामद में हद से ना गुजरे, क्योंकि याद रखो ये कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ 2.5 साल के मेहमान है। साबिक मिनिस्टर व बीआरएस से एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी पर हालिया एक तकरीब के दौरान बदसलूकी वाक़े की मजम्मत करते हुए रेवंत रेड्डी हुकूमत को निशाना बनाया गया और केटीआर ने कहा कि रियासती इख्तिदार में आते ही कुछ अफसरान रेवंत रेड्डी से बढ़कर कांग्रेस के गीत गाने लगे हैं, लेकिन वक्त आने पर एक एक का हिसाब लेंगे। कौन कितना झुका, कौन कितने झूठ बोले, सबका रिकॉर्ड हमारे पास है। केटीआर ने साबिक खातून वज़ीर दाखिला सबिता इंदिरा रेड्डी के खिलाफ मुबैना तौर पर पुलिस रवैये पर भी सवाल उठाया। कहा जो खातून इस रियासत की होम मिनिस्टर रही हैं, आज पुलिस इन पर धावा बोल रही है। क्या ये जमहूरियत है?
केटीआर ने आईएएस और आईपीएस अफसरान को सख्त तनबीह करते हुए कहा, जो ऑफिसर कांग्रेस लीडरों की तरह झूठ बोल रहे हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए कि हुकूमतें बदलती रहती हैं, लेकिन रिकॉर्ड हमेशा याद रखा जाता है। बीआरएस की तलबा तंजीम भारत राष्ट्रीय समिति विद्यार्थी ने कांग्रेस हुकूमत के गैर तकमील शुदा वादों की निशानदेही करने के लिए क्यूआर कोड स्कैनर पोस्टर मुहिम शुरू की है। इसके जरिए बेरोजगार नौजवानों से हुकूमत के वादों की अदम तकमील की निशानदेही की जा रही है। बीआरएस की वर्किंग सदर केटी रामाराव ने ये पोस्टर जारी किया है, जिसे बीआरएस वी के रियासती सेक्रेटरी राजेश नायक ने तैयार किया है। इस पोस्टर में एक क्यूआर कोड शामिल किया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम इंतखाबी वादों की तफसील को पेश किया गया है, जो बेरोजगार नौजवानों से किए गए हैं। इनमें यूथ डिक्लेरेशन, जॉब कैलेंडर और 420 वादों को शामिल करते हुए इनकी अदम तकमील का दावा किया गया है। इस क्यूआर कोड में राहुल गांधी के वादों के वीडियो क्लिप्स भी मौजूद हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का के जरिए किए गए वादों के वीडियोज क्लिप्स को भी इसमें शामिल किया गया है। केटीआर ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने में नाकाम है और इनसे धोखा किया गया है। हैदरा ने गंडीपेट मंडल के पोपुला गुड़ा में 200 एकड़ सरकारी अराजी की हदबंदी करने का फैसला किया है, ताकि यहां कीमती अराजी का तहफ्फुज किया जा सके और जो कदीम पहाड़ी सिलसिले हैं इसको पीछे जा सके। यहां कब्जेजात की शिकायत मिल रही हैं, जिसके बाद हैदरा ने हदबंदी करने और बाड़ लगाने का फैसला किया है। कहा गया है कि माहिरीन माहौलियात के ग्रुप्स की जानिब से 12 शिकायत की जा रही थी और कहा जा रहा था कि यहाँ सैकड़ों साल कदीम पहाड़ी सिलसिले हैं और करीब में भागीरथी अम्मा झील भी है। इस पर कब्जे हो रहे हैं, माहौलियात पर असर हो रहा है, पहाड़ी सिलसिले मुतासिर हो रहे हैं। इन शिकायत को पेश नजर रखते हुए कमिश्नर हैदरा मिस्टर एवी रंगनाथ ने इस इलाके का दौरा किया और उन्होंने तयक़ुन दिया कि सारे इलाके की हदबंदी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू हुकाम की मदद से मजहबी मुकामात और अराजी वगैरह का तहफ़्फ़ुज़ करने के इक़दाम किए जाएंगे। तेलंगाना भर में किसान अपने मसाइल से परेशान हैं और हुकूमत के खिलाफ अब एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने लगे हैं। इनका इल्जाम है कि हुकूमत यूरिया भी फराहम करने में नाकाम साबित हो रही है। जिले जगतियाल के पेगाडापल्ली मंडल में किसान दिन भर यूरिया के लिए कतारों में खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं, ताहम इन्हें यूरिया दस्तयाब नहीं हो रहा है। यूरिया की किल्लत के खिलाफ किसानों की जानिब से एहतजाज शुरू कर दिया गया है। किसानों का इल्जाम है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने किसानों से किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने किसानों को कई तयक़ुनात दिए थे, ताहम कोई भी पूरा नहीं हुआ। किसानों के खर्चात माफ करने का वादा किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस तरह किसानों को कई और मराहत फराहम करने का भी तयक़ुन दिया गया था, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ और किसानों को बुनियादी ज़रूरियात की तकमील के लिए यूरिया भी फराहम करने में हुकूमत नाकाम हो गई है। उन्होंने हुकूमत से यूरिया की किल्लत दूर करने का भी मुतालिबा किया। तेलंगाना में मजालिस मुकामी इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। अभी इंतखाबात का शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, ताहम इसके लिए मुख्तलिफ महकमाजात की जानिब से अपने तौर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस सिलसिले में कमिश्नर बल्दिया मिस्टर आरवी कर्नन ने चुड़ी बाजार में वाक़े इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के स्टोरेज का दौरा किया। कमिश्नर बल्दिया ने इस मौके पर तमाम तर हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाने पर जोर दिया और कहा कि इस स्टोरेज में हवा का भी खातिर ख्वाह ख्याल रखा जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ 24 घंटे निगरानी की जानी चाहिए और इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग मशीनों की हिफाजत के लिए जो कुछ भी रहनुमाना खतूत जारी किए हैं, इन पर अमल किया जाना चाहिए। कमिश्नर बल्दिया ने मुतालिका अमले को हिदायत दी है कि खास तौर पर फायर सेफ्टी के उमूर का ख्याल रखा जाए और स्टोरेज में लगातार बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाया जाए। बरक़ी सरबराही मुनक़ता होने पर मुतबादिल इंतजामात भी किए जाए। सारे स्टोरेज का कमिश्नर बल्दिया ने तफसीली मायना किया। आज जुमेरात की शाम से ही कुछ मुकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 2 दिन तक शदीद बारिश की पेशकयासी की है। महकमे ने कहा कि तेलंगाना के शुमाली अजला में आज सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है।
जबकि दिगर अजला में आज शाम से बारिश का सिलसिला शुरू होगा और 7 अगस्त तक जारी रहेगा। महकमे मौसमियात ने कुछ अजला के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा कि तेज हवाओं और गरज व चमक के साथ बारिश हो सकती है। हैदराबाद के ताल्लुक से भी महकमे ने पेश क़यासी की है कि शहर और अतराफ के अजला में भी आइंदा 2 दिन तक बारिश हो सकती है। हल्की ता औसत बारिश के अलावा कुछ मौके पर मौसलाधार बारिश के भी इम्कानात है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई व सीवरेज बोर्ड ने रेवेन्यू, पुलिस और दीगर सरकारी महकमे को खबरदार कर दिया है कि उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोलकर पानी का इखराज किया जा सकता है। कहा गया है कि दोनों ही ज़खायर आब की सतह में इजाफा हो रहा है। वाटर बोर्ड के जनरल मैनेजर ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि आबगिर इलाकों में मजीद बारिश की सूरत में कम से कम हिमायत सागर के दरवाजे खोले जा सकते हैं। हुक्काम ने निशिबी इलाकों और मूसी नदी के किनारों पर रहने वाले अवाम को मशवरा दिया कि वो चौकस हो जाएं और जरूरत पड़ने पर महफूज मुकामात को मुंतकिल हो जाएं। कहा गया है कि हिमायत सागर की मुकम्मल सतह आब 5.1763 फीट है, जबकि फिलहाल सतह आब 6.1762 तक पहुंच चुकी है। अगर मजीद बारिश की सूरत में हिमायत सागर में पानी का बहाव आता है तो फिर दरवाजे खोलकर यहां से पानी मूसी नदी में छोड़ा जा सकता है। मुतालिका महकमा जात और अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया गया है। संगारेड्डी जिले के कामाडी डाला मंडल के अनारम गांव में एक फार्मा कंपनी के कोल्ड स्टोरेज में भारी आतिशबाजी का वाकया पेश आया। ताहम इस वाक़े में किसी के जख्मी या हलाक होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। ताहम भारी माली नुकसानात का अंदाजा लगाया जा रहा है। कहा गया है कि चारजुमे की रात देर गए आग लगने का ये वाकया पेश आया। बताया गया है कि आग लगने के बाद अचानक ही शोले बुलंद होने लगे और सारे स्टोरेज यूनिट में तेजी के साथ आग फैल गई। कहा गया है कि स्टोरेज का बड़ा हिस्सा जलकर खाकिसर हो गया। आग लगने की इत्तला पर 8 फायर इंजन वहां रवाना किए गए, जिन्होंने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। कहा गया है कि 3 घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। काफी जद्दोजहद के बाद आग को करीबी दूसरी फैक्ट्रीज तक पहुंचने से रोका गया। कहा गया है कि इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। आग लगने की वजह का पता चलाने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर रात के औकात में नौजवानों और नाबालिग लड़कों की जानिब से बाइक स्टंट्स के वाकयात आम होते जा रहे हैं। किसी एक जगह की इत्तला मिलने पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जाती है तो ये नौजवान किसी और जगह का इंतखाब कर लेते हैं। फिलहाल इस तरह बाइक पर करतबबाजी और स्टंट्स के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्लाईओवर आराम घर को पसंद किया जा रहा है। इस फ्लाईओवर पर निब्स शब के बाद नौजवान गाड़ियों पर करतबबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। एक गाड़ी पर 3 सवार होते हैं। ये सब हरकतें करने वालों की उम्रें सिर्फ 20 साल के आसपास या इससे भी कम होती हैं। करतबबाजी के खिलाफ शऊर बेदारी के बावजूद इस तरह के वाकयात आम होते जा रहे हैं, जो खुद नौजवानों और दूसरों के लिए खतरा बने हुए हैं। महज सोशल मीडिया रील्स बनाने के जुनून में ये लोग जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको रोकने के लिए पुलिस और दिगर महकमा जात को कार्रवाई करनी चाहिए और खुद वालिदीन भी अपने बच्चों को कंट्रोल करने की जरूरत है। याकुतपुरा हल्के में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत में 45 लाख रुपए के तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने 40 लाख रुपए की लागत से याकुतपुरा बड़ा बाजार ता ब्राह्मणबाड़ी रोड तक बहने वाली सीसी रोड का मुआयना किया, जबकि बोनालू त्योहार के मौके पर मंदिर में 5 लाख रुपए के रेनोवेट का काम मुकम्मल किए गए हैं। इसके साथ साथ बोनालू त्योहार के दौरान मुकामी मंदिर में 5 लाख रुपए की लागत से तज़ाइन व आराइश का काम मुकम्मल किया गया। इन तरक्याती सरगर्मियों में मुकामी अवाम के ताउन और एमआईएम कारकुनान की फाल शमूलियत नुमाया रही है, जिनमें डबिलपुरा के कॉरपोरेटर अलमदार वलजाही, रेन बाजार के कॉरपोरेटर वासेउद्दीन व दीगर अराकीन शामिल है। बड़ा बाजार से जो ब्रह्मवाड़ी गांधी के पुतले की रोड है, जो डबिलपुरा डिवीजन और रेन बाजार के बीच की जो रोड है, वीडीसीसी रोड का काम का आगाज़ हुआ है, जिसकी लागत 40 लाख रुपए है। और वो मंदिर के अंदर जो बोनाल के डैम पे काम कराए उसकी लागत 5 लाख रुपए, जुमला 45 लाख रुपए के कामों का यहाँ पे शुरुआत हुई है। जो
याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी रेन बाजार और डबलपुरा डिवीज़न के बीच की अल्हम्दुलिल्लाह नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी के अंदर और रफ़ीक मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर काम तेज़ी से जारी है। उसी के सिलसिले में मैं आज यहाँ पर आके एक डिटेल इंस्पेक्शन किया हूँ और रोड को स्टार्ट करवाया हूँ। मेरे साथ में मुकामी कारपोरेटर डबिलपुरा अलमदार वाले जई साहब, रेन बाज़ार कारपोरेटर वासिमुद्दीन साहब, जनाब वसीम भाई साहब और दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह के फजल करम से जहाँ कहीं भी काम हो रहा वहाँ पे मुकामी अवाम, हमारे अपनाए वतन भाई गैर कौम के जो हिंदू भाई है वो लोग भी आज के इस प्रोग्राम में ब्रह्मवाड़ी के साथ थे। अल्हम्दुलिल्लाह नकीब मिलत और हबीब मिलत की निगरानी के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिना कोई मज़हब देखे के कामों को तेज़ी से आगे बढ़ाती है और अल्लाह के फजल से काम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जामिअतुल मोमिनात की ज़ेरे निगरानी 9 और 10 अगस्त को 2 रोज़ा कुल हिंद फ़क़ीही कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में मुनाक़द हो रही है, जिसमें मुल्क भर से मुमताज़ उलमा, मुफ्तियान इकराम, ख़वातीन, आलिमात और मुफ्तियात की शिरकत मुतवक्के है। पहले दिन का इजलास नक्शबंद हॉल लाल कोट में उलमा व मुफ्तियान के लिए, जबकि दूसरा दिन खिलवत जदीदा हैदराबाद में अवाम व ख़वातीन के लिए मखसूस है। इस फ़क़ीही कॉन्फ्रेंस में मौजूदा दौर के हसास दीनी व समाजी मसाइल जैसे EMI पर ख़रीदो फरोख्त, यूट्यूब, म्यूज़िक, व्लॉगिंग, AI, मेडिकल व मीडियाई अखलाकियात, योगा, DNA, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, शादी व तलाक़, बच्चों की तालीम, औरतों की खुद मुख्तारी और सोशल मीडिया पर दीन की तरवीज जैसे 27 जदीद मौज़ूआत पर आलमी गुफ्तगू होगी। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के 300 से ज़ायद जदीद उलमा, मुफ्तियान, मुफ्तियात, दानिशवरान और माहिरीन शरीयत की शिरकत होगी, जो इन पेचीदा मसाइल पर शरई रहनुमाई फराहम करेंगे। दुख्तरान मिल्लत इस्लामिया की अकामती दीनी अरबी व असरी यूनिवर्सिटी जामिअतुल मोमिनात के ज़ेर एहतमाम दारुल क़ज़ा मर्द व ख़वातीन जो चलाया जाता है, जिसके 25 साल मुकम्मिल होने पर सिल्वर जुबली तक़ारीब का इनक़ाद अमल में लाया जा रहा है। उस ज़िमन में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है। हज़रत अमीर शरीयत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसनुद्दीन साहब नक्शबंदी, सदर मुफ्ती जामिअतुल मोमिनात और सदर इस्तक़बालिया हज़रत मौलाना सैयद शाह अनुल हक़ क़ादरी साहब और बानी व डायरेक्टर जामिअतुल मोमिनात मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी साहब व दीगर उलमाए कराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए प्रेस को ये बतलाया है कि 9 और 10 अगस्त 2025 हफ्ता इतवार 2 रोज़ा फ़िक़ही कॉन्फ्रेंस शहर हैदराबाद में मुनाक़िद की जा रही हैं। इजलास अव्वल 9 के दिन हफ्ते के दिन 2025 सुबह 9 बजे शाहजहाँ फंक्शन हॉल तालाब कट्टे में मुनाक़िद किया जा रहा है। ये इजलास सिर्फ़ और सिर्फ मुफ्तियान कराम, मुफ्तियात, उलमाए कराम और आलिमात पर मुश्तमिल होगा, जिसमें 27 अनावीन पर मुज़ाकरा मुबाहिसा होगा और फ़ैसले होंगे तो कुरान और हदीस की रोशनी में। इसी तरह दूसरा जो इजलास होगा 10 अगस्त 2025 इतवार सुबह 9 बजे उर्दू मस्कन खिलवत मुबारक में, जो ख़वातीन के लिए जलसे आम होगा। मैं अपील करता हूँ हमारी इस्लामी और माँ और बहनों से, इस अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल जो ख़वातीन का इजलास दुव्वम है उर्दू मस्कन में मुनक़िद किया जा रहा है, इसमें जौक़ जरदोक़ शिरकत फरमाकर अपने मालूमात में इजाफ़ा फरमा लें। हैदराबाद पुलिस ने फ्रॉड के इस खतीर चुंगल की हकीकत को मजीद बेनकाब करते हुए यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर से वाबस्ता गैर कानूनी सरोगेसी और बच्चों की खरीदो फरोख्त के रैकेट में मजीद 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे गिरफ्तार शुदगान की तादाद बढ़कर 25 हो गई है और केसेस की तादाद 8 तक पहुंच चुकी है।
पुलिस ने इन अफराद के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के मजीद इल्जाम शामिल किए हैं। खासतौर पर इस मरकज की मालिक डॉक्टर नम्रता पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने क्लिनिक में किसी डॉक्टर का नाम और लेटर हेड गलत तरीके से इस्तेमाल करके अद्वियात लिखवाएं। मुतासरीन की जानिब से बताया गया है कि इन्हें IVF और सरोगेसी के नाम पर लाखों रुपये फी जोड़े वसूल किए गए, जबकि हकीकत में वादे के बरअक्स कार्रवाई हुई। डॉक्टर नम्रता पर यह इल्जाम है कि इनका क्लिनिक 2021 में इजाजतनामा खत्म होने के बावजूद किसी दूसरे डॉक्टर का नाम इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा था। इन्हें इब्तदाई तौर पर 5 रोजा पुलिस तहवील में रखा गया, बादअज़ा अदालती रिमांड पर भेज दिया गया। वरंगल के गिरी प्रसाद नगर के करीब एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां अचानक एक कुत्ता सड़क पर आने के बायस ऑटो उलट गया। इस हादसे में तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले 38 साला अजमेरी बेगम शदीद जख्मी होकर इलाज के दौरान दम तोड़ गई। मुकामी अफराद के मुताबिक TGT के तौर पर काम करने वाली खवातीन असतदा स्कूल का वक्त खत्म होने के बाद अपने घरों को वापस जा रही थी कि अचानक गिरी प्रसाद नगर के मुकाम पर यह हादसा पेश आया। ऑटो ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिसके बायस ऑटो उलट गया। इस हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए MGM हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अजमेरी बेगम, जो कि ड्राइवर के पहलू में बैठी थी, शदीद जख्मी होने के बायस जानवर ना हो सकी, जबकि ड्राइवर को भी शदीद चोटें आईं और दीगर खातून असतदा को भी मामूली जख्म आए हैं, जिसका इलाज जारी है। पुलिस ने अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। वरंगल के रेलवे गेट इलाके में मूसलाधार बारिश हुई, जिसने इर्द गिर्द के इलाकों जैसे उर्स जागीर, करीमाबाद, खाजी कुंड और शामून पेट को भी अपनी लपेट में ले लिया। बारिश के बायस नालों का पानी सड़कों पर जमा हो गया। मुकामियों को घर से बाहर आने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता 4-5 दिनों से वरंगल, हनमकुंडा और खाजी पेट शहरों में शदीद गर्मी का राज था। तहम आज सुबह होने वाली बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया। शहरियों ने ठंडी हवा और बारिश से राहत महसूस की। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में भी बारिश के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। अवाम से अपील की गई है कि वो एहतियात बरतें और गैर जरूरी तौर पर निशिबी इलाकों में जाने से गुरेज करें। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। कायदे अपोजिशन राहुल गांधी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी पर लगाया वोट चोरी का इल्जाम, कहा अलग अलग दिन क्यों होते हैं इलेक्शन। परगी में कांग्रेस को बड़ा झटका, BRS में अहम शमूलियतें, पार्टी छोड़ने वालों पर KTR का तंज, कहा अपना सियासी चेहरा तक दिखाने के काबिल नहीं रहे। पोपुलर गंडीपेट मंडल में 200 एकड़ सरकारी अराजी की हदबंदी की जाएगी, हाइड्रा का फैसला, कमिश्नर ने किया दौरा। तेलंगाना में आइंदा 2 दिन तक बारिश की पेश क़ियासी, हिमायत सागर में पानी के बहाव में इजाफा, दरवाजे खोलकर पानी छोड़े जाने का इम्कान, अवाम को चौकसी का मशवरा। हैदराबाद में गैर कानूनी सरोगेसी रैकेट, मजीद 8 अफराद गिरफ्तार, कुल तादाद हुई 25। IVF और सरोगेसी के नाम पर लाखों रुपयों का फ्रॉड। खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।